بدن میں سانس جب تک چل رہی ہے، ولایت کا سفر جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا و سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ عزیزان گرامی، ولایت کا سفر چینل کے ذریعے مجھے آج یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں کائنات کی ممتاز ترین شخصیت اور مالکہ حضرت شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کر سکا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کی 96 نمبر کی آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ عمل صالح بجا لاتا ہے، وہو مؤمن، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ مومن بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو۔ قدرت ایسے شخص اور ایسی شخصیت کو اپنے خصوصی الطاف و کرم سے نوازتی ہے۔ اس نے آواز دی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے لوگوں کو پاک و پاکیزہ اور طیب حیات کا مالک بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی زندگی اتنی محترم اور اتنی پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ خود قدرت اس کی طہارت کی ضمانت لے رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے۔ دو چیزوں کے ساتھ، ایک عمل اور ایک ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط عمل ہمارے لیے کافی نہیں ہے جب تک نور ایمان سے ہمارے قلوب سرشار نہ ہو۔ عمل اور ایمان کا امتزاج اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں کائنات کی اس عظیم ترین شخصیت کی زندگی میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، جس کا تعلق خاندان بنی کلاب سے تھا، خاندان عصمت و طہارت سے اس کا کوئی دور دور تک کا رشتہ نہیں تھا، مگر تاریخ نے بتایا کہ اس کے دل میں ایمان کی کرنیں پائی جاتی تھیں، جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ خود شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا، آپ کا نام ام البنین نہیں تھا، آپ کا نام فاطمہ تھا، اسی لیے آپ کو فاطمہ کلابیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتی تھیں جن کا شمار اشراف میں ہوتا تھا۔ آپ نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ہم ایک ایسے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہماری گود میں ایک چاند اور 3 ستارے پناہ گزیں ہیں، یعنی ہماری آغوش میں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے جب سوچا، دیکھا، خواب دیکھا اور دیکھنے کے بعد
फिक्र लायक हुई कि आखिर ये कैसा ख्वाब है कि हमारे आगोश में चांद और सितारे पाए जाते हैं। ये सोचने के बाद आपने अपने वालिद से भी इस ख्वाब का तज़किरा किया और अपनी मादर गिरामी से भी इस ख्वाब का तज़किरा किया, और जाहिर है कि वालिदैन आरिफ थे, ये समझ गए कि ये कोई बड़ी बशारत की बात है। लेकिन ये यहां से अपने वालिदैन के ज़ेरे साया बनी किलाब के उन मोतबर और मोहतरम उलमा के पास पहुंचे और मालूम करने के लिए कि आखिर इस ख्वाब की बशारत क्या है। और जब दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि यह ख्वाब बिल्कुल जनाबे यूसुफ के ख्वाब के जैसा है। बड़ा अजीम ख्वाब है। बड़ा अजीम ख्वाब है का मतलब यह हुआ कि इस ख्वाब की ताबीर हमें उस वक्त नजर आई जब आप खानदाने इस्मत व तहारत की फर्द बनी, और आप जब मौलाए कायनात की ज़ौजियत में आई तो आने के बाद आपकी आगोश में बनी हाशिम का चांद जगमगाता हुआ नजर आया और आसमान इस्मत व तहारत के सितारे, रोशन सितारे बना गजीर हुए। उस वक्त आपको अपने ख्वाब की हकीकत नजर आई। जनाबे उम्मुल बनीन की अजमतों के हवाले से, फजीलतों के हवाले से मैं जल्दी जल्दी दो एक रुख पेश करना चाहता हूँ। पहली मंजिल शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौलाए कायनात की शरीक हयात है, पैगंबर की बेटी है। जब तक आप हयात रही मौलाए कायनात ने दूसरी शादी करना तो दूर सोचा भी नहीं, जरूरत ही नहीं थी। एक कंप्लीट फैमिली जिसे कहते हैं हशाश बशाश जिंदगी गुजार रही थी, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद अब जाहिर है कि मौलाए कायनात को जरूरत दरपेश आई। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी परवरिश की जरूरत है। लिहाजा आपने अपने भाई अकील से फरमाइश की, सिफारिश की, अकील एक ऐसा खानदान बताओ जहां हम शादी करें जिससे एक बहादुर बेटा पैदा हो और हमारे लाल हुसैन के काम करबला में आए। ये नेक तमन्ना, नेक ख्वाहिश, नेक आरज़ू लेकर के आपने जनाब अकील के सामने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। यहाँ रुककर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मौला अली को क्या जरूरत थी कि आप जनाब अकील से कहें कि एक ऐसा घराना बताओ जो बहादुर हो? क्या मौला अली को नहीं पता था कि कौन सा कबीला कितना बहादुर है, कौन सा खानदान कैसा है? मैं एक जुमला कहता हूं, वो अली जिसके हाथों में पाई जाने वाली तलवार 70 नस्लों की खबर रखती है, उस अली को ये नहीं पता कि कौन सा खानवादा कैसा है, किसका हसब नसब कैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मौला को पता था, मगर शायद मेरा मौला अपनी ख्वाहिश के इजहार के जरिए ये चाहते थे कि जो जज्बा हमारे दिल में पाया जाता है, यही जज्बा हमारे पूरे घर भर के दिल में पाया जाए। अकील के दिल में ये तमन्ना पैदा हो जैसे हमारा घर और हमारे बच्चे हुसैन के काम आए, वैसे ही अकील के घर के बच्चे भी इमाम हुसैन इस्लाम के काम आए। और हुआ भी यही। करबला की तारीख ने साबित कर दिया कि जैसे मौलाए कायनात के बच्चों ने इमाम हुसैन इस्लाम की नुसरत फरमाई है, बिल्कुल वैसे ही जनाब अकील की औलाद ने भी करबला में अपनी तमाम तर हिमायतें और नुसरतें पेश की। इमाम ने फरमाइश की, खानदाने बनी किलाब की एक फर्द जनाब हजाम से गुफ्तगू हुई और आपको पता चला और आप मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, बेटी फातिमा, तुमने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर अब सामने आ गई। कायनात के बादशाह, कायनात के मुश्किल कुशा हजरत अली से तुम्हारा रिश्ता होना है। जाहिर है कि ऐसे मौके पर जनाबे फातिमा किलाबिया की कैफियत क्या रही होगी, अपने मुकद्दर पर जितना भी नाज करे कम है। उसके बाद आप रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई, मौला कायनात के घर आ गई। अब यहां से जिंदगी का दूसरा रुख नजर आता है। आप जब घर में तशरीफ लाई हैं तो उस वक्त मौलाए कायनात के अलावा घर में बच्चे भी मौजूद हैं। इन बच्चों ने जब देखा तो दौड़ करके गए, अम्मा आप पर हमारा सलाम।
जैसे ही बच्चों ने कहा अम्मा आप पर हमारा सलाम हो, तो ये अजमत शहजादी उम्मुल बनीन, बसीरत बीबी उम्मुल बनीन, आप मुलाजा फरमाइए, बच्चों को अपने सीने से लगाया, गले से लगाया और बच्चों से कहा, बच्चों मैं इस घर में तुम्हारी कनीज बन के आई, तुम्हारी मां बन के नहीं आई। इसलिए कि ये आई ही इसलिए थी कि बच्चों की परवरिश हो सके, हसनैन अलैहिस्सलाम परवान चढ़ सके, तो इनको ये हदफ पता था, लिहाजा आते ही बताया कि मैं तुम्हारी कनीज बन के आई। यानी जिस तरह अली मेरे मौला और आका हैं, बिल्कुल वैसे ही हसन और हुसैन भी मेरे मौला और आका हैं। ये जनाबे उम्मुल बनीन बच्चों से अपने हदफ का इजहार नहीं कर रही हैं, बल्कि दुनिया के हवाले अपने ईमान को उजागर कर रही हैं। देखो हमारा ईमान किस मंजिल पर है कि हम जानते हैं कि जिस तरह हमारे इमाम, हमारे वली, हमारे मौला मौलाए कायनात हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे इमाम हसन है, वैसे ही हमारे इमाम हुसैन। उसके बाद दूसरा मंजर तारीख ने पेश किया कि मौलाए मुत्तकियान ने जब अपने घर में आने के बाद आपको फातिमा कह के खिताब किया, तो आप एक मर्तबा मौलाए मुत्तकियान के करीब आई और आकर के दस्ते हाथ जोड़ करके अर्ज की, मौला मेरी आपसे एक इल्तिजा है, आप मुझे फातिमा कह के ना पुकारा कीजिए। अली ने पूछा क्यों? तो उस वक्त आपने अपनी मारिफत और अपने इरफान की मंजिल कमाल का इजहार किया। फरमाती है जब आप मुझे फातिमा कह के पुकारते हैं तो मैं महसूस करती हूँ कि हसनैन अलैहिस्सलाम को अपनी माँ फातिमा याद आ जाती है। आप मुझे फातिमा कह के ना पुकारें। चुनाचे उसी दिन से मौलाए मुत्तकिया ने आपका लक़ब उम्मुल बनीन रख दिया, बच्चों की माँ, और उसके बाद आप इसी नाम से मशहूर हो गई। और ये नाम दुनिया के गोशे गोशे में और छप्पे छप्पे में एक बावफा, बाबसीरत, नेक और साहिब किरदार खातून के तौर पर उभर कर आया। उसके बाद आप मौलाए कायनात के घर में जिंदगी गुजारती रही, यहाँ तक के वो वक्त भी आया कि जब आगोश उम्मुल बनीन में कमरे बनी हाशिम मुस्कुराता हुआ नजर आया और उसने अपनी जलवारेजी बिखेरी। जनाबे अब्बास बतने जनाबे उम्मुल बनीन से पैदा हुए। आने के बाद अब जाहिर है कि एक बावफा और बहादुर, बाबसीरत और नेक माँ के बतन से जन्म लेने वाली औलाद, उसकी वफादारी का कौन अंदाजा लगा सकता है। चुनाचे मौला अब्बास की वफादारी ऐसी मिसाली वफादारी है कि सारी कायनात इधर नवाज जबान पर लफ्ज वफा लाती है और उधर ज़हन के सफ़े पर नाम अब्बास उभर कर चला आता। वफा यानी अब्बास, अब्बास यानी वफा, ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से मुंसलिक है कि रहती दुनिया तक इन्हें कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। गाजी अब्बास की वफादारी का नमूना पेश करने के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो आगोश उम्मुल बनीन में परवान चढ़ रहा हो, उसकी वफा किस मंजिल कमाल पर होगी आप महसूस करें। अभी आपने देखा घर में आने के बाद कह रही है कि बच्चों मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूँ, मैं तुम्हारी माँ बन के नहीं आई हूँ, जबकि माँ है रिश्ते में, लेकिन ये फरमा रही है कि मैं तुम्हारी कनीज हूँ। अब जाहिर है उस आगोश में जो बच्चा परवान चढ़ेगा उसकी तरबियत कैसी होनी चाहिए। रिवायत में मिलता है कि शहजादी ने एक मर्तबा अपने बेटे मौला अब्बास को अपने करीब बुलाया और बुला करके सवाल किया, अब्बास अतुहिब्बुल हुसैन, क्या तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो? मौला अब्बास ने फरमाया बेशक हम इमाम अली मकाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं। शहजादी ने एक सवाल कर लिया सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि अब्बास की वफादारी किस मंजिल कमाल पर, एक सवाल कर लिया, ये बताओ तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो किस बुनियाद पर करते हो? तो मौला अब्बास ने एक जुमला कहा, मैं दो हैसियतों से मौला हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। पहली हैसियत तो ये कि वो मेरे भाई हैं और दूसरी हैसियत ये कि वो मेरे मौला और आका। अब आप देखिए, जिस माँ ने घर में आने के बाद इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम की विलायत का इजहार
अपनी जबान से किया था, बच्चों मैं तुम्हारी माँ बन के नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूँ। उस माँ का बेटा आज कह रहा है मेरे भाई भी हैं और मेरे मौला और आका भी हैं। तो फौरन तरबियत का एक नमूना तारीख ने पेश किया। शहजादी ने फरमाया, अब्बास खबरदार, आज के बाद ये न कहना कि वो हमारे भाई हैं। गौर करें और तारीख का मुतालिया करें तो ये छोटी छोटी बातें हमारे ज़हन के सफात पर इस तरह से मुनव्वर होती हैं कि हमको अजमत किरदार खानवादे इस्मत व तहारत का सही अंदाजा होता है। आप महसूस कीजिए, अब्बास भाई ना कहना, आका कहना। खुद कहा था मैं कनीज हूं और बेटे से कहा आका कहना, यानी हमेशा गुलाम बन के जिंदगी गुजारना। और उसके बाद का अगला जुमला फरमाती हो, सुनो हुसैन, तुम्हारे भी इमाम हैं, हमारे भी इमाम हैं और कायनात के हर जर्रे के इमाम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शहजादी ने इस मंजिल पर रुककर अपने ईमान का इजहार भी फरमाया और मौला अब्बास की बेहतरीन तरबियत भी फरमाई और बता दिया कि देखो, हुसैन को इमाम समझना, कभी अपने आप को उनका भाई न तस्वुर करना। और यह तरबियत ही का असर था। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मौला अब्बास ने इमाम अली मकाम को हमेशा आका कहा, भाई नहीं कहा। और अब आप देखिए तारीख में वाक़यात करबला आपकी निगाहों के सामने है। जब गाजी अब्बास की जिंदगी का आखिरी लम्हा आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे। जब करीब पहुंचे तो देखा मौला अब्बास फुरात के किनारे तड़प रहे हैं। हुसैन करीब पहुंचे, सर को उठाया, जानू पे रखा। गाजी अब्बास ने एक जुमला कहा, कहते आका, मैं जब दुनिया में आया था तो सबसे पहले मैंने आपके रूह अनवर की जियारत की थी। मैं जा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी जियारत करूं। हुसैन ने कहा, अब्बास आंखें खोलो, क्या चीज माने? कहा, एक आंख में खून पैवस्त है और एक आंख में तीर पैवस्त है, कैसे जियारत करूं? मौला ने तीर निकाला, अबा के दामन को उठाया, आंखों से खून को साफ किया। साफ करने के बाद गाजी अब्बास ने आंख खोली और आंख खोलने के बाद कहा, आका हमारा सलाम आखिर लीजिए। उस वक्त फर्जंद ज़हरा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुमला कहा था, अब्बास मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। अब्बास मेरी एक तमन्ना है, तुमने जिंदगी भर मुझे आका कहा, कभी भाई नहीं कहा। अब्बास मैं चाहता हूं कि मुझे एक बार भाई कह के पुकारो। इस ख्वाहिश का इजहार होना था। रिवायतों का फिक्रा है, गाजी अब्बास ने मदीने का रुख किया। अम्मा उम्मुल बनीन, आपकी ताकीद और आपकी हिदायत थी, कभी भाई ना कहना, और यहाँ हुक्म इमाम है, मैं क्या करूं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक हुक्म परवरदिगार हुआ, फरिश्ता अजल आया, रूह कफ़से इंसूरी से परवास कर गई। यह है वफादारी का वो आला नमूना और आला सबूत। जाहिर है कि शहजादी उम्मुल बनीन के हवाले से मैं क्या क्या अर्ज करूं आपके सामने, थोड़ा सा वक्त है, बातें बहुत सारी हैं। आप बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस हद तक गमे करबला में महजून थी कि हर वक्त रोती थी, गिरिया करती। वाक़या करबला सन 61 हिजरी का है और उसके फौरन बाद 2 या 3 बरसात जिंदा रही और सन 64 हिजरी में आप इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम का असर आपके क़ल्ब मुतहर पर इस हद तक तारी हुआ कि फिर आपको जिंदा रहना भी गवारा नहीं हुआ। अरबाब अज़ा, आज खुशी बीबी की शहादत का दिन तारीख है और इस तारीख पर आपके सामने विलायत का सफर टीवी के जरिए जो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 जुमले अर्ज करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन की निगाहों में वो पूरा मंजर सामने आ जाए कि शहजादी उम्मुल बनीन और इमाम अली मकाम से और इस घराने से क्या निस्बत थी और क्या उनसियत थी और क्या लगाव था। रवायतों का फिक्रा है, जब गाजी अब्बास
अपने बाजुओं को कटाकर रुखसत हो गए, इमाम अली मकाम पर फिलिया हो गए। यह काफिला रिहाई पाकर मदीने पहुंचा। जब यह काफिला मदीने पहुंचा है तो रिवायत कहती है बशीर ने आवाज बुलंद की, मदीने वालों, मदीना अब रहने के काबिल नहीं रहा। जो मेहमान यहां से रुखसत हुए थे वो सब के सब करबला में लुट गए। नबी का गुलशन ताराज हो गया, दिलबंदे ज़हरा मारा गया। फजा की आवाज अभी गूंजी रही थी कि अचानक शहजादी उम्मुल बनीन हाथों में असा लेकर, सफेद बाल, कमर झुकाए हुए बड़ी तेजी के साथ बशीर के करीब आई और आकर सवाल करती है, बशीर तू ये क्या कह रहा है? कौन हुसैन मारा गया? किस हुसैन की बात कर रहा है? बशीर ने आवाज दी, बीबी, ज़हरा का लाल हुसैन मारा गया, फर्जंद ज़हरा मारा गया। इतना सुनना था, उम्मुल बनीन बेसाख्ता जमीन पर बैठ गई और उसके बाद एक मर्तबा अचानक नजफ का रुख करके कहती है, नजफ के वालियों वारिस सुन रहे हो? हुसैन मारा गया, मेरे अब्बास ने वफा नहीं। इतना सुनना था, पीछे से शाहज़ादी ज़ैनब उठी और उठ करके अम्मा के गले लग गई और लग के कहती है, अम्मा ऐसा न कहिए, मेरा भैया अब्बास जब तक सलामत रहा किसी की मजाल नहीं थी कि कोई आंख उठाकर हमारी तरफ देखता, मगर जब अब्बास के दोनों बाजू फुरात पर कलम हो गए और अब्बास साहिल के किनारे रुखसत हो गया, उसके बाद दुश्मनों ने हमला किया, उसके बाद मेरे माजाया कत्ल हुआ। ये सुनकर शहजादी उम्मुल बनीन ने फरियाद शुरू कर दी और फिर एक जुमला और शहजादी ने फरमाया। शहजादी फरमाती है, सईद सज्जाद की तरफ देखकर, सईद सज्जाद, तुम जब करबला से आ रहे थे तो क्या मेरे लाल ने तुम्हें कोई मैसेज और पैगाम दिया था? शहजादी का सवाल था। जनाब सईद सज्जाद कहते हैं, हाँ दादी उम्मुल बनीन, जब आखिरी वक्त मेरे चचा का था तो मेरे चचा ने कहा था, सईद सज्जाद जब वतन जाना तो मेरी माँ को मेरा सलाम कहना और कहना, अम्मा आपसे जो वादा लिया था और वादा किया था तो अब्बास ने उसे पूरा कर दिया। अब्बास ने अपनी वफादारी का नमूना पेश कर दिया, अब्बास ने वादे को निभा दिया, अब्बास हुसैन के पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। इतना सुनना था। अचानक शहजादी उम्मुल बनीन सईद सज्जाद की तरफ मुड़ के कहती है, बेटा सईद सज्जाद, मैं सदक़े के बारे में तुमसे सवाल नहीं कर रही हूँ, वो तो मेरे आका का सदका था जो उसके नाम पर खुदा हो गया और कुर्बान हो गया। मैं तो अपने आका और मौला हुसैन के बारे में सवाल कर रही हूँ। मेरे लाल ने तो कुछ नहीं कहा। मेरा लाल जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसने क्या कहा? सईद सज्जाद कहते, फूफी अम्मा, वो नौबत ही कहाँ आई। मेरा बाबा मक्तल में पहुंचा, चारों तरफ से हमला हुआ, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर मारे, किसी ने तलवार मारी, किसी ने पत्थर बारानी की। मेरा बाबा घोड़े से जमीन पर आया, मुनादी ने नदा बुलंद कर दी, अला क़ुतिल हुसैन बि करबला, अला ज़ुबैल हुसैन बि करबला। हुसैन घोड़े से जमीन पर आए, शिब्र मलून सवार हुआ, कुंद खंजर से मेरे बाबा का गला काट डाला। अम्मा, हम दादी उम्मुल बनीन, हम देखते रह गए और फजा में कोहराम बर्पा हो गया। वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह हुसैना। अरबाब आज़ाद, हमारा आज का ये प्रोग्राम शहजादी उम्मुल बनीन के हवाले से आपकी खिदमत में पेश किया गया है। बारगाह रब्बिल इज्जत में हम दस्त दुआ है, परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को शरफ कबूलियत इनायत फरमा और हमारी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमा, ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज से शहजादी उम्मुल बनीन को खराज अक़ीदत पेश कर सकें।